Music of the spheres, reverberating in interstellar space, is music from another place. To hear that music of the spheres, one needs more than keen human ears. A heart in perfect harmony with that divine rhapsody. All great composers have been instruments that we have seen. They could hear the chords and notes, which is what their pens faithfully wrote. We hear these great symphonies, our hearts are tuned to that harmony. For a while we lose mortality and become part of immortality. Music of the spheres, reverberating in interstellar space, is music from another place. To hear the music of the spheres, one needs more than keen human ears. A heart in perfect harmony with the divine rhapsody. All great composers have been instruments that we have seen. They could hear the chords and notes. Their pens faithfully wrote. When we hear these great symphonies, our hearts are turned to that harmony. For a while, we lose mortality, become a part of immortality. এই কবিতাটা আমার মায়ের লেখা। মা পণ্ডিচেরি আশ্রমে বড় হয়েছে, তারপর একটি মারবাড়ি বাড়িতে বিয়ে। মারবাড়ি মানে বুঝতেই পারছেন, একটা জীবন থেকে আর একটা জীবনের ট্রান্সফরমেশন। তাও কোনোদিন আমি হেরে যেতে দেখিনি। তিনটে ছেলেকে বড় করতে করতে বড় বয়সে আলিয়ান্স ফ্রান্সে থেকে ফ্রেঞ্চের ডিপ্লোমা নেওয়া এবং পুরো বাড়িটাকে সামলানো, তার সঙ্গে টিচার, সবসময় একটা স্ট্রিক্ট রুলের মধ্যেই থাকতো। তো বাবার কাজের পরে মা বলেছিল যে পারলে কোনো দিন যদি সম্ভব হয় কাশীর মায়েদেরকে দেখো। আজ ভাবনা মুখ তারই চিন্তা ভাবনায় এতটা দূর। যদি হরিভূমি ট্রাস্ট পারে, যদি আপনারা পারেন, যদি ঝর্ণাদি পারে, যদি রুমি পারে, যদি চন্দন সাধুকা পারেন, যদি তপনদা পারেন, যদি ডক্টর পি.কে. মণ্ডল পারেন, যদি ডক্টর অরুণ কুমার রাজ পারেন, যদি পিসি বাগচি পারেন, যদি প্রণব কুমার সেন পারেন, যদি সৌভিক পারে, যদি দীপাদি পারেন, তাহলে অনেক কিছুই হতে পারে। আমরা তাকিয়ে আছি সাধারণ মানুষের দিকে, যারা একটা অসাধারণ দেশ করবেন। লকডাউনে আমরা বুঝতেই পারছি আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি। ডক্টর অরুণ কুমার রাজ ডিপ্রেশনের ওপরে কিছু বলবেন, ললিতা জি কিছু বলবেন, আমারও অনেক কিছু বলার আছে। আগে তাদেরকে শুনুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। जीवन से हारे नहीं, जिंदगी चुने। इन संकेतों से समझे कहीं आपका कोई अपना डिप्रेशन में तो नहीं। टेलीविजन से करियर की शुरुआत कर बॉलीवुड में स्थापित होने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को खुदकुशी कर ली। शुद्ध देसी रोमांस, एम.एस. धोनी, छिछोरे, केदारनाथ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुशांत की खुदकुशी की खबर सुनकर सभी हतप्रभ हैं कि करियर के इस मुकाम पर कोई ऐसा आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। WHO की ओर से आत्महत्या को लेकर जारी ग्लोबल डाटा के मुताबिक ऐसा करने वाले 15 से 29 साल के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि डिप्रेशन के बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकते हैं। डॉक्टर ए. कुमार बताते हैं कि जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं वे किसी से बात नहीं कर पाते और अकेला महसूस करते हुए जिंदगी से हार जाते हैं। कई बार डिप्रेशन जब हावी होने लगे तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। आपके आसपास कोई अपना ऐसी किसी स्थिति में ना हो, इसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि डिप्रेशन के कुछ संकेत होते हैं। अगर आपका कोई अपना दोस्त, सहकर्मी या कोई और जानने वाला अगर डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसका व्यवहार पर गौर करना जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की बातों में, उनके बर्ताव में बदलाव जैसे लक्षण देखे जाते हैं।
आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे डिप्रेशन की स्थिति के बारे में पता चलता है। नींद। डिप्रेशन में व्यक्ति की नींद न आने की परेशानी शुरू हो जाती है या वह फिर बहुत सोने लगता है। भूख। डिप्रेशन में कई बार लोगों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, उन्हें भूख का अनुभव नहीं होता। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है। वजन। डिप्रेशन में व्यक्ति का वजन या तो बढ़ जाता है या फिर घटने लगता है। हर महीने व्यक्ति के वजन में औसतन 5% बदलाव देखा जाता है। उदासी या अकेलापन। उदासी डिप्रेशन का एक बड़ा संकेत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनों के बीच, दोस्तों और परिवार के बीच भी खुश नहीं रह पाते। अक्सर वह भीड़ में अकेलापन जैसा महसूस करते हैं। थकान या सुस्ती। डिप्रेशन में कई बार बिना मेहनत या काम किए भी थकान और सुस्ती महसूस होती है। शरीर में दर्द रहना और चेहरे पर थकान दिखना भी डिप्रेशन का बड़ा लक्षण है। एकाकीपन। डिप्रेशन में व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। किसी के बीच रहने, बात करने का मन नहीं होता। वह अपना एक आभासी जोन बना लेता है और उसी में रहना चाहता है। मन में भटकाव। डिप्रेशन में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है। दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती है। जरूरी काम से भी ध्यान हटने लगता है। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ भूलने लगता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बिना कारण के भी गुस्सा हो जाता है। अपराध बोध। कई बार डिप्रेशन में लोगों को हद से ज्यादा अपराध बोध महसूस होता है। उसे अक्सर लगता है कि जो कुछ गलत हुआ है वह उसी की वजह से हुआ है। ऐसे में वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अनजाना डर। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के मन में किसी तरह का डर बैठ जाता है और वह उसे सच मान बैठता है। डर के ऐसे कारकों में अंधेरा, बंद कमरा, किसी व्यक्ति का डर, किसी हादसे का डर आदि शामिल होता है। उल्टे सीधे विचार। डिप्रेशन में कई व्यक्ति अपने जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। उन्हें कई बार उल्टा सीधा ख्याल आने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा और उन्हें दुनिया बेकार लगने लगती है। ऐसे में क्या करें, क्या ना करें? अगर आपके किसी करीबी में, दोस्त में या सहकर्मी में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर जिंदगी को सहज, सरल और व्यवस्थित करना चाहिए। खुद को समय देना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुछ और ऐसी ही चीज़ों के बारे में। डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति को अपने सबसे करीबी और भरोसे वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए। सेहतमंद और संतुलित भोजन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना भी अवसाद को दूर करने का बेहतर तरीका है। संगीत सुनना बेहतर विकल्प है। पसंद की संगीत सुनने से मूड फ्रेश यानी ताज़ा रहता है। डिप्रेशन से निजात के लिए म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है। अगर व्यक्ति मन की बात किसी से कह नहीं पाता तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से मन हल्का होता है। जिससे दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। डिप्रेशन जैसा महसूस हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जिनके साथ रहने से मूड अच्छा हो, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। पुरानी बातों या घटनाओं से उभरते हुए वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। पुरानी बातें सोचने से व्यक्ति अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। अपने काम या नौकरी की समीक्षा करनी चाहिए कि व्यक्ति कितना संतुष्ट है। कहीं उसके डिप्रेशन की वजह असंतुष्टि तो नहीं। यदि ऐसा है तो दूसरे विकल्पों की ओर मुड़ना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति हावी होने पर पीड़ित व्यक्ति की काउंसलिंग जरूरी होती है। उन्हें समय रहते मदद की जरूरत होती है। मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हों तो मनोचिकित्सक से खुलकर बातें करनी चाहिए। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के अभिभावक
या किसी अपने को चाहिए कि डॉक्टर को पूरी बात बताएं और पीड़ित के व्यवहार में आए बदलावों के विषय में खुलकर बात करें। मनोचिकित्सक जरूरत के अनुसार दवाओं और थेरेपी के जरिए पीड़ित का इलाज करते हैं। अगर सही समय पर मदद मिल जाए तो इस मुश्किल से छुटकारा संभव है। अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन की किसी स्थिति का सामना कर रहे हो तो ऐसे कोई संकेत नजर आ रहे हो तो आपको समय रहते किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में किशोरों में बढ़ रहे मानसिक तनाव के मामले, जाने इससे बचने के उपाय। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ समय से बहुत कुछ बदल दिया है। पिछले कुछ समय से संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है। लॉकडाउन में ढील तो दी जा रही है, पर अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सभी पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार लॉकडाउन से सबसे अधिक युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। इस शोध में ये दावा किया गया है कि लॉकडाउन किशोरों में मानसिक तनाव का कारण बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ शोध। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुए शोध में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन की वजह से किशोरों में मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अधिक दिखने को मिल रही है। कई अन्य शोधों में भी यह बात को लेकर चेताया जा चुका है कि ज्यादा समय तक लॉकडाउन करने से मानसिक समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ने के कई कारण हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन में किन कारणों से किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। सामाजिक संपर्क ना होना। इस शोध में बताया गया है कि किशोरों में मानसिक समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक संपर्क ना हो पाना। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों में कैद है, जिस वजह से किसी से भी मिलना संभव नहीं हो रहा है। शोधकर्ता बताते हैं कि इस उम्र में सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरों के अनुसार भी इस उम्र में लोगों से मिलना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। स्कूल, कॉलेज के बंद होने से बढ़ रहा है मानसिक तनाव। शोधकर्ताओं ने स्कूल, कॉलेज बंद होने का भी मानसिक तनाव का कारण बताया है। उनका कहना है कि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ नया करना चाहता है। स्कूल, कॉलेज में व्यक्ति व्यस्त रहता है, जिस वजह से दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज बंद है, जिस वजह से युवा वर्ग काफी परेशान रहने लगे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये उम्र ऐसी होती है जिसमें तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते हैं और इस समय घर में कैद होने दिमाग में गलत विचारों के आने की संभावना भी काफी है। इन गलत विचारों के कारण मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों से दूर। किशोरावस्था में व्यक्ति दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। इस उम्र में व्यक्ति दोस्तों के साथ घूमने जाता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय लॉकडाउन की वजह से ना तो दोस्तों से मिलने जा सकते हैं और ना ही घूमने जा सकते हैं। अकेले रहने की वजह से मानसिक समस्याएं होने लगती है। दोस्तों से संपर्क में रहें। लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है, परंतु इस समय दोस्तों से मिलना ठीक नहीं है,
क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप अपने दोस्तों से सोशल मीडिया, वीडियो चैट के माध्यम से बात मन हल्का कर सकते हैं। दोस्तों से फोन के माध्यम से संपर्क करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव नहीं होगा। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी बातें दोस्तों से ही साझा करना पसंद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अपनी बातें दोस्तों के साथ साझा करने से ही मन हल्का होता है। घर के कामों में मदद करें। भारत सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है आपको अभी कुछ समय और अभी घर पर ही रहना होगा। इस समय मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि खुद को व्यस्त रखा जाए। आप घर के कामों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह से फायदा मिलेगा। घर के कामों में माता पिता की मदद करने से आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। इसके अलावा आप घर के काम करना भी सीख जाएंगे। किताबें पढ़ें। कहा भी गया है, किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इस समय अपनी पसंद के अनुसार किताबें पढ़ें। आपको ऑनलाइन भी कई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। वाराणसी में चिल्ड्रन बैंक के नाम से एक ऐसा बैंक खोला गया है जहां पर कूड़ा बीनने वाले 15 साल तक के बच्चे रोजाना 1 से 2 रुपए जमा करते हैं। इस बैंक में अब तक 1800 बच्चे खाता खोल चुके हैं।